Good morning, all of you. So, this is our sixth session in reproduction organism. Hello, my name is Bhavesh, and I'm talking on behalf of Preparation Easy. We are going to start with the sixth session of reproduction in organism, and this session will specifically focus on the menstrual cycle. What menstrual cycle is, how this cycle works, what are the phases in menstrual cycle, what is its importance, and what sort of care should be taken during the phase of during the duration of this menstrual cycle. So let's start with the very first slide, introduction towards the session, that is reproduction in organism. Menstrual cycle. Now the menstrual cycle is a natural process that occurs in the female reproductive system. So very obvious that this cycle will stay with the female reproductive system, and it's part of the whole process of reproduction. Specifically, what menstrual cycle is, that it's a process of preparation of the uterus for pregnancy or for fertilization, right? So menstrual cycle is a process, a vital process, natural process that occurs in the female reproductive system. It prepares the body for pregnancy every month. So every month, the duration, I'll talk about the duration later, but every month this cycle will be repeated. Now there are two things what you have to consider before starting this cycle. By the age of 12 years, tentatively the cycle will start. So the starting of cycle, starting of menstrual cycle will be called as menarche. Menarche. The age, the time, the duration for this is tentatively 12 years, sometimes also less than 12 years. You can say 9 to 12 years. 9 to 12 years, the menstrual cycle will start. Now, as per the newer data, as per newer data of WHO, no, the cycle is about to be started around within 9 years or 10 years or 12 years also, but we consider this time span of 9 to 12 years. And the end of menstrual cycle will occur at the age of around 45, and the phase is called as menopause. Menopause. So this is around 45 years. 45 years, at the age of 45 years, 45 to 50 years, 45 to 50 years, right? So starting of the cycle, starting of menstrual cycle, the duration of starting of menstrual cycle is 12 to 9 to 12 years, and the time it will end, by the time it will end, will be around 45 to 50 years. So it prepares the body for pregnancy every month, and so you have to remember this one thing, that this process will occur every month, right? So it will be repeated every single month, the process of preparation of the body for pregnancy every month. It fertilizes. If fertilization does not occur, the uterus sheds into lining. Uterus sheds its lining, resulting in menstrual bleeding. So this is what called as menstrual bleeding. The only process of menstrual cycle what we can see, or what a girl can see, is the menstrual bleeding, which lasts around 3 to 7 days, 3 to 6 days, 1 to 6 days के बीच में ये चलती है. तो menstrual bleeding, इसमें जो lining की बात ये कर रहा है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा और focus करेंगे. But as of now, you have to remember that the menstrual cycle is divided into 3 phases, right? So the last phase or the first phase, basically जहां से शुरू होगा और जहां खत्म होगा, ये menstrual bleeding होगा. तो क्या होता है, अगर fertilization नहीं हो रहा है, if the female body is not being fertilized or the woman's sperm are not being fused, at that case what will happen, if fertilization does not occur, the uterus sheds its lining. The inner lining of the uterus, which is called as endometrium specifically, that endometrium gets shredded in the form of blood and blood clots and capillaries. The whole thing will be flushed out of the body. This cycle plays a key role in reproductive health and is important for growth and release of the eggs. Now, this cycle is very essential for the process of reproduction or for the process of fertilization. If menstrual cycle is not regular, there are lots of other disorders, lots of other diseases, and lots of physiological changes that can occur in a female body. So, this cycle plays a vital role in overall health. The health can be, as per the definition of the health, no, the health is a complete state of physical, mental, spiritual, and all sort of well-beings, and merely absence of any disease, right? So the whole statement of health includes 3 different aspects, or not only 3 different aspects, there are many different aspects. There is something which is called as physical health, physiological health, there is something which is called as mental health, then spiritual health, holistic health. So all these parameters of health should meet, and then only we can call the human being as a healthy human being or a disease-free human being. So this is a definition which is given by WHO, World Health Organization.
Now what we are talking about here is that menstrual cycle plays important role in maintaining the balance of health or this term health in female body, right? So this cycle plays a key role, an important vital role in reproductive health and is important for the growth and release of the eggs. Now what we know what eggs are and how oogenesis is happening and from where the oogenesis is happening. So ovary will be the responsible part for all of this, but at the same time uterus the uterus involvement is also very strong in the whole process. Let's move toward the next slide. Menstrual cycle. The menstrual cycle is controlled by hormones produced by the brain and ovary. Now, in brain, who will produce the hormone? We also have discussed about this earlier. So, in brain, is just give me a second. In brain, pituitary gland. There is something which is called as pituitary gland. Is responsible for stimulation of hormone. Stimulation of hormone, you can say, or you can say secretion of the hormone. So pituitary gland plays a vital role in stimulation of hormone. Which sort of hormones? Now you don't have hormones, the hormonal part in that detail, but फिर भी मैं explain कर दे रहा हूँ कौन से होते हैं, just enlist कर दे रहा हूँ. There is something which is called as FSH, which is called as follicle stimulating hormone. Now what follicle is? So you will see follicle luteal phase में हम लोग follicle के बारे में पढ़ेंगे, है ना. तो ये follicle क्या होता है? बेसिकली eggs ही होते हैं. तो eggs का जनरेशन, डीजनरेशन, ये सारा स्टिमुलेशन का काम जो है ये FSH से हो रहा होता है. इसी के अलावा एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं LH. LH is called as luteinizing hormone. luteinizing hormone, ठीक है. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो इसमें आएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. अच्छा, इसके अलावा देयर इज समथिंग इज कॉल्ड एज GnRH, ग्रोथ हार्मोन जिसको हम लोग कहते हैं ना. गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो होते हैं ये तो गोनाड से बनते हैं बेसिकली, पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं बनते. तो वी कैन just erase this here, but pituitary gland plays an important role. And then the ovaries will produce the hormones which are essential, जिसको हम लोग कहते हैं, अगर if we are talking about hormones produced by the ovaries, then these will be two. One is estrogen, we have also talked about this in the earlier class, estrogen, and the other one will be progesterone, right? So estrogen and progesterone, these are two hormones which are being produced by the ovary. And when we are talking about pituitary gland will produce follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, right? So this is what two sorts of hormones are produced during the stage of menstrual cycle or overall in the female body, which are specifically concerned toward the reproductive system. Now there are also other hormones, जैसे इंसुलिन अपने आप में एक हार्मोन है ना, तो ये भी हार्मोन्स है, ग्लैंड बनाती है इनको. तो दैट इज नॉट कंसर्न हियर, हम लोग सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कनेक्टेड हार्मोन्स की बात कर रहे थे, तो ये इतने होंगे सर. वो द मेन हार्मोन इन्वॉल्व्ड आर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. नाउ दे हैव स्टेटेड इट. द मेन हार्मोन्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, राइट, which regulates the growth of the uterine lining, the release of the eggs and the preparation of the uterus for pregnancy. The main hormone involved are estrogen and progesterone. तो दो मेन हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगे. वो पहला रहेगा, first one is estrogen and the second one is progesterone, which regulates the growth of the uterine lining. अब ये जो uterine lining की हम लोग बात कर रहे हैं बारी बारी, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ. देखो, we know the diagram, right? This is how female reproductive system used to look, है ना. यहाँ पर हमारा ओवरी होता था और फिर देन दिस वाज द ओपनिंग एंड हियर वाज द सर्विक्स, वजाइना, राइट. तो यहाँ जो हमारा ट्रायंगुलर शेप यूटेरस था, इसकी इनर लाइनिंग की बात हो रही थी. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि 3 तरह की लेयर इसमें होती है सर, है ना. एंडोकार्डियम, जो एंडोमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होता है, पेरीमेट्रियम होता है ना. तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम की हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किए थे. तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें एंडोमेट्रियम की, है ना. ये जो अंदर का लाइनिंग होगा एंडोमेट्रियम, इस एंडोमेट्रियम का फंक्शनिंग और फॉर्मेशन के लिए ये हार्मोन्स बहुत रिस्पॉन्सिबल है. दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अप हियर, राइट. That's what he is talking about here. The main hormone involved are estrogen and progesterone, which regulates the growth of uterine lining. तो ये क्या कर रहा है? Stimulate नहीं कर रहा है, ये regulate कर रहा है ना. Regulate करना मतलब क्या? Control करना. Regulate करने का मतलब क्या होता है? To control, right? So which regulates the growth of the uterine lining, the release of the eggs and the preparation of the uterus for pregnancy. तो release of the egg भी करेगा और preparation भी करेगा pregnancy के लिए uterus का, ठीक है. तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको मैं कहीं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, so that you can remember it. एंडोमेट्रियम, है ना.
एंडोमेट्रियम, तो दिस लाइनिंग, यही लाइनिंग है जो श्रेड होगी। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। द साइकिल यूजुअली लास्ट अबाउट 28 डेज बट कैन रेंज फ्रॉम 21 to 35। तो ये आपको याद रखना है। नॉर्मल हेल्दी साइकिल जो है, जो तुमको जनरली देखने के लिए मिलेगी, वो रहेगी 28 दिन का साइकिल, 28 डेज का साइकिल, राइट। बट दिस कैन रेंज बिटवीन 21 to 35 डेज। सो ये पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल पे मैटर करता है। सो दिस रेंज ऑफ द साइकिल विल चेंज एज पर द इंडिविजुअल। ऑल्सो विद द लाइफस्टाइल, द हैबिटेट। मान लो देयर इज अ वुमन जिसका एक्सटेंसिवली नॉक्टर्नल लाइफस्टाइल है। नॉक्टर्नल मतलब रात को काम करने वाला लाइफस्टाइल है, तो उन केसेस में हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है। हार्मोनल इंबैलेंस मतलब क्या, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो सिक्रीशन है, या जो अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बॉडी में चाहिए, वो थोड़ा सा डिसरप्टेड है, वो थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड है। तो उस केस में देयर आर सेवरल केसेस इस तरह की, जिसमें तुम्हारा हार्मोनल इंबैलेंस होने के कारण जो साइकिल है वो डिले हो सकती है। अच्छा, एक पूरे एनुअल ईयर के अंदर देयर इज पॉसिबिलिटी कि जो साइकिल है वो अराउंड 1 से 2 बारी डिले होता है। जनरल है ये, ठीक है, 1 से 2 बारी जो है ये डिले हो सकता है। कितनी बार साइकिल्स आएंगी? टेंटेटिवली 11 साइकिल्स हम लोग एक एनुअल ईयर में पकड़ते हैं कि 11 साइकिल के आसपास जो है सर इसमें आएंगे, ठीक है। 11 साइकिल्स जो है, अ वुमन विल अंडरगो 11 साइकिल्स, अप्रोक्सीमेटली 11 साइकिल्स विद इन 1 ईयर, राइट, बिकॉज 1 साइकिल कैन बी थोड़ा सा प्लस माइनस आगे पीछे हो सकता है। तो ये इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि किसी का एक्सटेंसिवली नॉक्टर्नल लाइफस्टाइल है या किसी का हार्मोनल इंबैलेंस्ड है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर। दिस इज ऑल्सो अ पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है, मेंसेस विल नॉट कम। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मेंसेस कहते हैं। तो मेंसेस विल नॉट कम फॉर लाइक 3 months or 4 months. So there are two sort of specific disorders in this. Okay, let's discuss about that also. I'll not go much into depth of it, but we just try to understand the terminology so that many of you might be suffering from this. And if you are suffering from this, so it is very important to consider this, that this is not life-threatening disorder, life-threatening disease. It's just part of a physiological disorder and can be corrected with the help of good diet, good lifestyle, plenty of exercises, and consultation with the gynecologist. So if you are doing these 4 things, this sort of diseases, this sort of disorders can be corrected. There are 2 things when about menstrual cycles, or disruption of menstrual cycle, or what you can say, unfamiliar, unorganized menstrual cycle. There are 2 things. There is something which is called as PCOS, right, and there is something which is called as PCOD. So PCOS is polycystic ovarian syndrome, right, polycystic ovarian syndrome, and there is something which is called as PCOD, polycystic ovarian disease. So these both of these, let's consider this as 1 and this as 2. Both of these disorders can be cured with the help of what? होता क्या इसमें? Polycystic. I'm not going that depth into the pathophysiology part or the physiological part of this, but consider that in both of these cases what will happen, the menstrual cycle will be delayed, and delayed for a much longer duration of time. Generally delay कितना हो सकता है? 3 days, 2 days, 5 days can be considered. Extreme case scenario 10 days. उससे ज़्यादा का delay is not possible, right? But if the cycle is being delayed for like 3 months or 4 months or longer period of time, then there is a high possibility that the female is suffering from any one of these diseases, whether she is suffering from PCOS or whether she is suffering from PCOD. So both of these are pathological disorder, and the way to cure this, if anybody of you or anybody is suffering from these 2 diseases, the only way you can cure this is, first thing, it is not life threatening, it is not lethal, जिससे किसी की जान नहीं जाएगी। हार्मोनल इंबैलेंस होगा फॉर ऑब्वियस, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का नंबर जो है वो बढ़ते कम ज़्यादा होते रहेगा, तो उस वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। द बेस्ट वे टू क्योर दिस इज कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट, है ना। सबसे पहले तो एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलिए, उसके बाद में व्हाट यू कैन डू, एक्सरसाइज, राइट। Exercise is an important aspect of treating PCOS, that you are having good physical exercise. उसके अलावा what is important, healthy diet, है ना। healthy diet बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इसमें। एंड उसके अलावा तीसरी चीज़ क्या है सर, healthy diet के अलावा lifestyle. So if you have good lifestyle, no, if you are not extensively nocturnal worker, आप रात में जागते नहीं हो लंबे समय तक, और अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो, your meals are well planned, at right time you are eating, है ना, your right time you are sleeping, you are doing plenty of exercises, enough exercises to keep your body healthy, then these can be cured with these primary measures as well. And if you need, you can also take hormonal therapy, HRT जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो
usual cycle lasts about 28 days but can be ranged from 21 to 35 days depending on the individual. So ये individual to individual depend करेगा. This was about the initial phase of the menstrual cycle. Now let's start with the first phase of menstrual cycle. Menstrual cycle phase 1, which is called as the menstrual phase. So this is the first phase. तो इसको हम लोग first भी consider करते हैं. In some books this can also be termed as or coined as the last phase. But अभी हम लोग इसको first पकड़ के चल रहे हैं. Menstrual phase is the first phase when the uterine lining breaks down and is released from the body as blood through the vagina. It lasts around 3 to 7 days. तो 1 से 7 दिन, 3 से 7 मतलब मैक्सिमम 3 दिन का होता है. शुरू तो 1 से होगा. तो 1 से लेकर के 7 दिन के बीच में 3 to 7 डेज के बीच में जो है ये साइकिल एग्जिस्ट करेगी, है ना. यहाँ पर इफ यू कैन सी द डायग्राम्स हियर करेक्टली, देयर आर डेज रिटन 1 2 3 4 5, तो दिस कैन नोट 6, राइट. 1 to 6 और 1 to 7 डेज के बीच में चलेगी ये. तो 7 दिन का होता है ये ब्लीडिंग. जनरली इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे एंड इट विल एंड बाय द 6th डे. 6वें दिन तक जो है वो ब्लीडिंग बंद हो जाता है. 7वें दिन इतना ब्लीडिंग होगा नहीं. ये ब्लीडिंग होना मतलब क्या है, देखो जैसा मैं बोल रहा था, द थिंग आई वाज डिस्कसिंग इज दैट कंसीडर this shaded part you can see here is endometrium, right. This is endometrium, the innermost lining of the uterus, right. Now this endometrium was prepared for fertilization. ये जो endometrium था इसका preparation क्यों हुआ था, why this lining was developed in the uterine cavity or the uterine segment to do the implant of the zygote or to do the implant of the embryo. Now because fertilization did not happen during that phase, fertilization नहीं हुआ, तो what will happen now, this whole lining is of no use and this will get spoiled. अगर ये नहीं निकलता है ना बॉडी से बाहर तो ये खराब हो जाएगा. This will get spoiled, so we need to flush this out. इसको स्क्रैपिंग कर करके, इसको खुरेद करके पूरा बाहर निकालना पड़ेगा so that the uterus is ready for the formation of newer lining, है ना. क्योंकि ये एक साइकिल है, साइक्लिक प्रोसेस है. This is going to be repeated every month. After every 28 days, after every 31 days, the cycle is going to be repeated. The cycle is going to repeat itself. So once fertilization did not occur in the body, in the female body, it is very important, vitally important that this endometrium which is being formed for the implantation or formed for the process of implantation should be removed out of the body. So what will happen? The scraping of this will happen. This will be removed and this will remove in form of what? देखो क्या क्या निकलेगा. पहला तो you will see blood, है ना. दूसरा कैपिलरीज मिलेंगी तुमको, ब्लड कैपिलरीज जो होती है ना वो. और कई बार ऐसा हो सकता है कि तुमको थोड़ा सा सिस्ट्स में भी इसमें क्लॉट्स ब्लड क्लॉट्स या सिस्ट भी इसमें मिल सकती है ना. सिस्ट तो रेयर केस में मिलेगी पर ब्लड क्लॉट्स विल सी. सो दिस विल बी फ्लश्ड आउट ऑफ द बॉडी एंड कहाँ से निकलेगा ये? दिस विल कम आउट थ्रू दी वजाइना, राइट. दिस विल कम आउट थ्रू द वजाइना. सो ये याद रखना है हमको. ये फर्स्ट स्टेज है और इस पूरे स्टेज को, इस पूरी प्रोसेस को, मतलब स्क्रैपिंग ऑफ एंडोमेट्रियम और रिमूवल ऑफ द एंडोमेट्रियम फ्रॉम द वजाइना विद बाय द मींस ऑफ ब्लड और कैपिलरीज और क्लॉट्स इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल फेज. सो दिस फेज इन इटसेल्फ, ये जो पूरा फेज है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे फेज को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज. मेंस्ट्रुअल फेज है ना, फर्स्ट फेज, इसको नंबर 1 कहेंगे हम लोग. ठीक है, चलो आई रीड द स्टेटमेंट वन मोर टाइम. This is the first phase when the uterine lining breaks down and is released from the body as blood through the vagina. It lasts for about 3 to 7 days. Duration हमको याद रखना है कि 1 से 7 दिन के बीच में ये होगा सर. Okay, next slide is next slide is follicular phase. After menstruation, the body starts to prepare for the next cycle. Now, once menstruation is done, यानी 1 से 7 दिन का पीरियड खत्म हो गया है, and body have removed all the blood vessels or the capillaries or the clots, and the endometrial lining have been flushed out of the body. Now, you can see this diagram very clearly. तो जो पहली वाली डायग्राम में हम लोगों को इस तरह का लाइनिंग दिख रहा था, वो अब दूसरी लाइनिंग में यहाँ पर नहीं है ना. यूटेरस इज क्लीन नाउ, द यूटेरस इज रेडी. सो यहाँ पर जो है नया साइकिल शुरू हो जाएगा. तो फर्स्ट डे हो जाएगा ये फॉलिकुलर फेज. तो ये फर्स्ट डे हो जाएगा, समझ रहे हो, बेसिकली नए साइकिल के लिए, मतलब मेंस्ट्रुएशन निकल जाने के बाद. ऐसे तो ये 7th या 8th डे होगा, यहाँ 6 लिखा हुआ है बट इट विल बी 7th और 8th डे. पर यहाँ से नया शुरू होगा सारा प्रोसेस, यानी नया प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, नया प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एग्स, नया प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉलिक्यूल्स. क्लियर हो रहा है? फॉलिकुलर फेज. आफ्टर मेंस्ट्रुएशन द बॉडी स्टार्ट्स टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट साइकिल. मेंस्ट्रुएशन हो जाने के बाद नए साइकिल के लिए शुरू करेगी, which will start around 7th day और 8th day. ठीक है. The ovaries develop follicles, each containing an egg. Estrogen helps rebuild the uterine lining during this phase. Now क्या होगा? ओवरी के दो काम है. ओवरी have two different sort of works.
फर्स्ट वन इज टू प्रोड्यूस हॉर्मोन्स which is very obvious है ना. Ovary will be responsible for production of hormones. Which hormones? The first one will be estrogen. We have studied about this. Second one will be progesterone. Progesterone, right? Also, the other role of ovary is to produce follicle. There is something which is called as Graafian follicle. Now, if you go in depth of it, you'll understand that there is something which is called as Graafian follicle. Graafian follicle. This much terminology you don't have in your syllabus, but still, what you'll call it as follicle, right? So, ovary have two different roles. First is to produce hormone. Other one is to produce follicle. Now, follicle will consist of, what does this follicle will consist of? This will consist of the egg or the ovum. Follicle will consist of egg or ovum, right? So, first role of the ovary is to produce hormones, right? Like hormones like estrogen and progesterone. Now, here, estrogen will not play that important role, but progesterone will not play that important role, but estrogen have an essential role in the follicular phase, right? What is that? That is to start the formation of inner lining. Estrogen क्या करेगा? Start करेगा formation of inner lining को. So, endometrium के रीडेवलपमेंट का या रीजनरेशन का जो काम है वो स्टार्ट कौन करेगा? वो स्टार्ट करेगा ईस्ट्रोजन. समझ में आ रहा है क्या? हार्मोन पहला ईस्ट्रोजन ओवरी ने बनाया, उसका काम क्या है? रीजनरेशन स्टार्ट करना, इनर लाइनिंग का, एंडोमेट्रियम का वापस से जो मैन्युफैक्चरिंग है वो शुरू करना. दूसरा काम क्या रहेगा ओवरी का? ग्राफियन फॉलिकल यानी फॉलिकल बनाना. क्यों? जिस फॉलिकल के अंदर एग है, ओवम है. ठीक है, क्लियर है? तो आई जस्ट रीड द स्टेटमेंट वन मोर टाइम. Follicular phase after menstruation, the body starts to prepare for next cycle. The ovaries develop follicles, each containing an egg. Estrogen help rebuild the uterine lining during this phase. तो इसी फेज के दौरान एंडोमेट्रियम का लाइनिंग का रीडेवलपमेंट भी शुरू होगा सर. साथ में फॉलिकुलर फेज में एग्स बनना, फॉलिकल बनना शुरू हो जाएगा, इसलिए उसका नाम फॉलिकुलर फेज रखा हुआ है ना. देयर इज रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर फेज. There is a reason why it is called as follicular phase, because follicles are going to be started. The generation of the follicle is going to be started, right? So this cycle will last around 7 to 15 days. 7 से 15 दिन के बीच में चलेगी. यहाँ पे 6 to 14 लिखा हुआ है, बट जनरली इट स्टार्ट फ्रॉम 7 to 15 डेज, है ना. ये थोड़ा 1-2 दिन से नंबर आगे भी जा सकता है, बिकॉज वी नो. क्या पता है हमको? जनरल साइकिल कितने दिन की थी? जनरल साइकिल वाज ऑफ 28 डेज, बट इट मे लास्ट फ्रॉम कितना दिन? 21 से लेकर के 31-32 डेज तक ये हो सकती है. डिपेंड्स अपॉन, वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना, पर्सन टू पर्सन. तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है. दैट दिस थिंग वी नो वेरी क्लियरली, राइट. सो मैं क्या बोल रहा हूँ? 28 डेज का साइकिल होगा. उसमें पहला हमने पकड़ लिया 1 to 7 डेज में जो है मेंस्ट्रुअल फेज हो गई थी. 7 days onwards, यानी 8th day और 7th day onwards, what will happen till 15 days? The follicular phase will be what you can say, follicular phase undergo हो रही होगी, उसकी प्रोसेस चल रही होगी, जिसमें क्या क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल will happen, and other thing is that estrogen नाम का हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होगा. Okay, let's move towards the next slide then. Now this is the third phase, which is called as the ovulation phase, one of the most important phase. Complete menstrual cycle is important, but this is important also by the terms of hormones. In the terms of hormones, ovulation phase, right? Ovulation का मतलब क्या है? What this term ovulation means? इसको अगर हम लोग डिस्कस करें तो ovulation, what this ovulation is, sir? So ovulation is nothing but ovulation phase. Ovulation phase में क्या हो रहा होगा? ओव्यूल्स बन रहे होंगे, है ना. ओवम जो है ये रिलीज होने वाला होगा, रिलीज, है ना. ओवम रिलीज होने वाला होगा या उसके रिलीज को प्रिपेयर किया जा रहा होगा. प्रिपरेशन ऑफ इट्स रिलीज, है ना. उसके रिलीज को जो है उसको प्रिपेयर किया जा रहा होगा, तो इसलिए उसको हम लोग ओव्यूलेशन फेज है. अराउंड द मिडल ऑफ द साइकिल, नाउ दिस विल बी हैपनिंग 15 डेज के ऑनवर्ड्स, राइट. 15 to 19, 15 to 20 डेज में. अराउंड द मिडल ऑफ द साइकिल, वन मैच्योर एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी. मैंने बोला ना, मिडल ऑफ द साइकिल में क्या होगा? रिलीज हो जाएगा ये, है ना, रिलीज हो जाएगा. तो वन मैच्योर एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी. अब यहाँ पे ओवम रिलीज होगा क्या? नहीं. अगर हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं तो यहाँ पर फॉलिक्यूल रिलीज हो रहा होगा. ठीक है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ. वेट, यहाँ पर ओवम रिलीज नहीं हो रहा होगा सर. यहाँ पर क्या रिलीज हो रहा होगा? फॉलिकल
विल बी रिलीज्ड, है ना। और ये सीधा सीधा रिलीज नहीं होगा, सीधा रिलीज भी नहीं होगा, इसमें एक और प्रोसेस होती है, हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। सीधा फॉलिकल से ओवम बाहर नहीं निकलेगा, समझा रहा हूं। देखो, अराउंड द मिडल ऑफ द साइकिल, दिस साइकिल विल लास्ट अराउंड कितना, ड्यूरेशन ऑफ दिस साइकिल क्या बोलेंगे हम लोग, ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ साइकिल विल बी अराउंड 15 टू यू कैन से 15, 16, 17, 18, 19, 20 डेज, है ना। 15 टू 20 डेज के आसपास में इसका ड्यूरेशन होगा। इसमें क्या होगा, फॉलिकल रिलीज हो जाएगा, एक मैच्योर फॉलिकल। कौन सा फॉलिकल, द फॉलिकल विच इज मैच्योर्ड, राइट, मैच्योर्ड फॉलिकल, मैच्योर्ड जो पूरी तरह से ग्रो कर चुका है, आपने ग्रोथ का उसने पूरा जो स्टेजेस है वो कंप्लीट कर लिया, दैट सॉर्ट ऑफ फॉलिकल विल बी रिलीज from the ovary. This process is called as ovulation. The egg travels through the fallopian tube and can meet sperm for fertilization. यहां से जो एग है वो कहां ट्रैवल करेगा, इस पार्ट में ट्रैवल करेगा सर, दिस पार्ट ओवरी से निकला, released from the ovary and it will travel to the fallopian tube. We have studied about fallopian tube and process of fertilization, है ना। तो fallopian tube पे जाकर के वहां रीच करेगा हमारा जो ओवेरियन फॉलिकल्स था, भी अब स्टडीड था, ठीक है। ये कहां से कहां चलेगी बेटा, 15 से 20 दिन तक, 15 से 19 दिन तक, 4 से 5 दिन की जो साइकिल है ओवुलेशन फेज की होगी, जहां पर रिलीज ऑफ फॉलिकल होगा। अच्छा, ल्यूटियल फेज, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो, ल्यूटियल फेज, आफ्टर ओवुलेशन द एम्प्टी फॉलिकल टर्न्स इनटू स्ट्रक्चर कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखो, ये होगा शुरू जो है तुम्हारा, ये 20 दिन पे शुरू होगा, ठीक है, 20 डे पे शुरू होगा, 28 दिन तक आखिरी तक चलेगा, 20 दिन पे शुरू होगा, स्टार्ट एंड दिस विल बी द एंड ऑफ ल्यूटियल फेज, ऑफ एंड ऑफ ल्यूटियल फेज, एंड ऑफ ल्यूटियल फेज, ठीक है। चलो बता रहा हूं, अब मैंने क्या कहा था, हमारा जो ओव्यूलेशन फेज था, ओव्यूलेशन फेज, in ovulation phase what happened, follicle got released, है ना, ये follicle burst होगा, follicle release होगा, इसमें से what will happen, egg और ova will go towards fallopian tube FT, and वहां अगर sperm आता है तो fertilization होगा, राइट, अगर sperm आता है तो। अब बचा हुआ जो follicle का पार्ट था, the remains of the follicle after the removal of the ova gets converted into something which is called as corpus luteum, right, something which is called as corpus luteum, right, this is something which is called as corpus luteum, which produces progesterone. Now this corpus luteum, which is being secreted, or which is the remains of, what you can say, these are the remains of follicle, This remains of follicles are responsible for the formation of secretion of hormone. The second hormone which we have talked about is progesterone, है ना। ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन को सेक्रेट करना शुरू करेगा सर। चलो, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग जो ईस्ट्रोजन ने बनाई थी, है ना, एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग ईस्ट्रोजन ने बनाया था उसको थिकन करेगा, सपोर्ट करेगा प्रेगनेंसी को। और मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो, लेट्स सी दिस नाउ, थोड़ा सा डिटेल में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। फर्स्ट थिंग तो हम लोग क्या करते हैं, ओव्यूलेशन फेज से इसको उठाते हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन फेज में क्या हुआ था, फॉलिकल रिलीज हुआ, है ना, फॉलिकल जो था वो रिलीज हुआ। फॉलिकल रिलीज होकर के दो चीजें हुई, अब फॉलिकल के रिमेन्स जो है वो इधर आ जाएंगे, और फॉलिकल में से जो ओवा निकला, दिस ओवा विल गो टुवर्ड्स फैलोपियन ट्यूब, है ना, और फैलोपियन ट्यूब में जाके अगर इफ इट मेट्स विद द स्पर्म, है ना, अगर ये जाकर के स्पर्म से मिलता है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाएगा। दैट इज अनदर स्टोरी फॉर द अनदर डे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिमेन्स ऑफ द फॉलिकल। तो ये जो रिमेन्स होंगे फॉलिकल के, ये बनेंगे आगे जाकर के, दिस विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, है ना, this will convert into corpus luteum, and this corpus luteum what it will do, it will secrete, ये क्या secrete करेगा सर, secretion of second hormone which is called as progesterone, है ना। ये दूसरा हार्मोन जो है हमारा प्रोजेस्टेरॉन, उसको secrete करना शुरू करेगा। अब इसका क्या रोल है, फंक्शन क्या है इस प्रोजेस्टेरॉन का, फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज
टू important, very important, to thicken the endometrium, इनर लाइनिंग है ना एंडोमेट्रियम, और इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं इनर लाइनिंग endometrium, to thicken the endometrium produced by estrogen. तो ईस्ट्रोजन ने जो एंडोमेट्रियम बनाया था, इनर लाइनिंग बनाई थी, उसको थिकन करने का काम किसका है? ये काम प्रोजेस्टेरॉन का है, ठीक है. दिस वाज अबाउट द लास्ट फेज विच इज कॉल्ड एज द ल्यूटियल फेज, है ना. तो ये कितना दिन चलेगी वापस? दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 20 डेज टू अराउंड 28 डेज. अगर लेट शुरू हुई है किसी, मान लो 29 पे शुरू हुई है, 30 पे शुरू हुई है ना, किसी में सॉरी 21 पे या 22 पे शुरू हुई है, तो दैट विल गो अप टू 31 एंड 32 डेज, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एज द ल्यूटियल फेज. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट स्लाइड, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. नाउ इसका इंपॉर्टेंस क्या है? हम लोगों ने साइकिल पूरा पढ़ लिया है ना. लेट्स रिवाइज द साइकिल वन मोर टाइम, है ना. एक बार इसको पट से देख लेते हैं. पहला मेंस्ट्रुअल फेज था, वी रिमेंबर. इसमें क्या हो रहा था? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा था 1 to 7 डेज के बीच में, ठीक है. सेकंड वन वाज फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा था? फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा था. इसमें जो हमारे दो ग्लैंड्स थे, पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरी, दे आर प्रोड्यूसिंग टू हार्मोन्स. ओवरी एक हार्मोन पकड़ रही थी, साथ में ग्राफिन फॉलिकल या फॉलिकल का फॉर्मेशन भी हो रहा था. दिस लास्ट अराउंड कितना दिन? 7 से लेकर के 15 दिन तक ये चलता था, ठीक है. 6 to 14 डेज और 7 to 15 डेज फॉलिकुलर. यहाँ पे एंडोमेट्रियम की जो प्रोसेस थी, स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम गॉट स्टार्टेड हियर ओनली इन दी फॉलिकुलर फेज. द फर्स्ट वन इज मेंस्ट्रुअल फेज, द सेकंड वन वाज फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज में व्हाट हैपेंस? द रीजनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम गॉट स्टार्टेड एंड एट द सेम टाइम फॉलिकल डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल आल्सो वाज बिगिन. नाउ ओव्यूलेशन फेज. ओव्यूलेशन फेज में व्हाट हैपेंड? द फॉलिकल वाज बीइंग रिलीज्ड हियर. फॉलिकल गॉट रिलीज्ड from the ovary and went to the fallopian tube in the ovulation phase, right? And again what happened? इसका साइकिल कितना था सर? साइकिल वाज अराउंड 15 to 20 डेज ओव्यूलेशन फेज में, ठीक है, जहाँ पे ओव्यूलेट होना शुरू हुआ. तो 15 से 20 दिन का साइकिल इसका रहेगा. वहां खत्म हुआ था 15 पे, यहाँ पर 15 से 20 दिन का साइकिल होगा. अच्छा, अगला उसके बाद में ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल फेज में व्हाट हैपेंड? फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम अकर्ड इन दिस फेज. एट द सेम टाइम द what you can say ova which was released from the follicle will go towards the fallopian tube, and then if sperm comes there, so it will get fertilized to form the zygote or the embryo. So we are clear with this stage also, and this starts around 20th day, 20 to 21st day, and this will go around 28 to 31st day, right? The cycle ka duration will be from 20 to 31. Okay, now importance of menstrual cycle. Iska importance kya hai? We'll discuss about that. Menstrual cycle is important for reproductive health. वुमन की, फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट हेल्प्स इन रिलीज ऑफ हेल्दी एग्स एंड एंश्योर दैट द यूट्रस इज रेडी फॉर प्रेगनेंसी. सो दिस प्रोसेस ensures the release of healthy eggs and uterus is ready to support pregnancy. Ensures that uterus is ready to support pregnancy. It also helps maintain hormonal balance in the body, affecting physical and emotional health. Now see, hormonal level जैसे जैसे बॉडी में चेंज होंगे ना, उसके साथ साथ जो फीमेल होती है उसका मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी डिसरप्ट हो सकता है. अगर हार्मोन्स का सिक्रेशन कम होगा तो उससे लिथार्जिक फील होना, फटीग फील होना, है ना, एजिटेटेड बिहेवियर होना, इरिटेटेड बिहेवियर होना, ये बड़ा कॉमन है ना. तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हार्मोन्स शुड मेंटेन देयर लेवल. The level of hormones should be maintained in the body. So that can only be maintained with the help of what you can say continuous menstrual cycles. If the menstrual cycles are continuous, that they are coming after every month, then this hormonal level will be balanced in the body, and the physical and mental health of the woman will be maintained or well balanced, right? It also helps in the maintenance of physical and emotional health. Okay. Menstrual health. Taking care of menstrual health includes maintaining good hygiene by using clean sanitary pads or menstrual cups, eating healthy diet rich in iron and vitamin, and exercising regularly. Now see, ये है हमारा हेल्थ कैसे मेंटेन करना है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, मेंटेनेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ, राइट. सो पहले तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सैनिटरी पैड्स इस्तेमाल होता है ना, सैनिटरी पैड्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ द क्लोथ्स, है ना, एट द टाइम टू प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन, है ना. तो सैनिटरी पैड्स क्या करते हैं? सैनिटरी पैड्स शुड बी वोर्न ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कौन सा? ब्लीडिंग वाला फेज, यानी हमारा मेंस्ट्रुअल फेज जो था पहला, जब ब्लीडिंग हो रही थी, उन 7 दिनों में इन सैनिटरी पैड्स को पहनना होता है. यू हैव टू चेंज दैट पैड्स एवरी 6 to 12 आवर्स में. यू हैव टू चेंज द पैड, ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड फ्लो, कितना ब्लड बाहर निकल रहा है,
है ना, उसके ऊपर से भी यू हैव टू चेंज द पैड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अच्छे सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करें। अच्छे डजंट मीन कॉस्टलियर, अच्छे मीन्स विच आर व्हाट यू कैन से सेप्टिक, है ना, जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, जो अच्छे से रखे गए थे, जिसके ऊपर कोई क्रॉस इन्फेक्शन, क्योंकि दैट कैन कॉज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, है ना, वजाइनाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वजाइनल लाइनिंग्स, है ना, तो ये सब हो सकता है। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि सैनिटरी पैड जो है वो अच्छे होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, है ना, सेप्टिक होने चाहिए। By using clean sanitary pads and menstrual cups. Now menstrual cups is another sort of way, है ना, उसमें बहुत सारे होते हैं, tampons होते हैं, menstrual cups होते हैं। तो these tampons और menstrual cups are also devices which are used during the menstrual phase, right? Bleeding phase के दौरान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। Eating healthy diet rich in iron and vitamin. अभी healthy diet में आयरन और विटामिन के नाम हमने क्यों लिया सर? देखो बताता हूँ। तो जैसे हम लोगों ने देखा बच्चों कि हो क्या रहा था, मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज, है ना, मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान क्या हो रहा था, हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, हेवी, अरे जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके, हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, हेवी ब्लीड हो रहा है। जब ब्लीड हो रहा है उस समय पर क्या होगा, बॉडी में का जो ब्लड है वो कम हो जाएगा। बहुत मार्जिनल लेवल पे, मतलब बहुत ड्रास्टिक लेवल पे होगा क्या, नहीं, मार्जिनल लेवल पे होगा। लेकिन अगर मान लो किसी फीमेल में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड इन द बॉडी, नो, लिथार्जिक फील होना, लिथार्जिक मतलब थका हुआ, फटीग फील होना, स्पिन्स होना, चक्कर आ जाना इज पॉसिबल, है ना, हो सकता है ऐसा। तो इसको प्रिवेंट करना है हमको। तो अगर ये ब्लड कम हो जाएगा तो क्या होगा, बॉडी में दो तरह की कंडीशंस होंगी। एक तो बॉडी एनीमिक हो जाएगी। एनीमिया कब होता है, एनीमिया मतलब होता है, दो तरह के होते हैं, उसमें काफी एग्जाम टाइप्स है एनीमिया के, पर्निशियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, पैथोलॉजिकल एनीमिया। लेकिन एनीमिया में होता क्या है, बेसिकली ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है बच्चों, है ना, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ऑक्सीजन की ऑक्यूपेंसी कम हो जाती है, तो एचबी डिक्रीजेस। तो एक तो ये जरूरी है कि हम लोग जिस तरह खाना खाए उसके अंदर आयरन होना चाहिए। क्यों आयरन होना चाहिए, आई विल टेल यू दैट आल्सो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, नाउ आई विल डिस्कस दैट आल्सो। देखो हमारा जो ब्लड है, आरबीसी, ब्लड इज कॉल्ड एज आरबीसी, है ना। आरबीसी का फुल फॉर्म पता है किसी को क्या होता है, इरिथ्रोसाइट होता है, बायोलॉजिकल नेम इरिथ्रोसाइट, है ना, ऑल्सो कॉल्ड एज रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, लेमन लैंग्वेज में हम लोग इसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। अब इस रेड ब्लड सेल का कंपोजिशन कैसा होता है, इस सेल के अंदर एक हार्मोन होता है, एक पिगमेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं एचबी या हीमोग्लोबिन, है ना, हमने सुना भी होगा, तुम लोगों ने सुना होगा हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट के अंदर ना फेरस नाम के आयन होते हैं। क्या होता है, फेरस नाम के आयन, एफी नाम का आयन होता है। ये एफी नाम का आयन जो है, फेरस यानी क्या, फेरस मतलब होता है आयरन सर, नॉर्मल लैंग्वेज में हमारे। तो ये आयरन जो है ना, इस आयरन का काम होता है ऑक्सीजन को लेके जाना। कहाँ लेके जाना, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को लेके जाता है ये, है ना। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स कहाँ लेके जाएगा, लंग्स से उठाएगा ऑक्सीजन और हमारे बॉडी ऑर्गन्स को देगा जहां जहां रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आयरन की रिक्वायरमेंट है बॉडी में, तो ये कहाँ है, लेकिन आयरन ये प्रेजेंट कहाँ था, ब्लड के अंदर था, आरबीसी के अंदर था, हीमोग्लोबिन के अंदर था। तो जब ब्लड लॉस हो रहा है ना, when blood loss is occurring, because of blood loss what will happen, iron will the level of iron will get depleted in the body। आयरन का जो लेवल है बॉडी में वो कम हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा क्या हो जाएगा, और क्या बोला था उसने, आयरन का लेवल कम हो जाएगा। विटामिन्स आल्सो आर वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ दी व्हाट यू कैन से, तुम्हारा जो बॉडी फ्लूइड है उसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, तो विटामिन्स का भी रिफिलमेंट होना चाहिए, है ना। तो ये कहाँ से मिलेगा, ये हेल्दी डाइट से मिलेगा। तो दिस आयरन should be maintained to prevent anemia because of heavy bleeding in the females. That's why we should consume iron rich क्या कहते हैं उसको फूड, जैसे स्पिनच हो गया, डेट्स हो गया, जैगरी हो गया, पीनट्स हो गया। दिस विल हेल्प इन दी, दिस विल प्रिवेंट द डिप्लीशन ऑफ द आयरन फ्रॉम द बॉडी, है ना। आयरन लेवल को डिप्लीट होने से बचाएगा ये। कौन सा बताया मैंने, स्पिनच हो गया, तुम्हारा जैगरी हो गया, पीनट्स हो गए, उसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, डेट्स हो गए, खजूर जो होते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, एंड आल्सो एक्सरसाइजिंग। व्हाई, क्योंकि मसल्स जो होंगे वो बहुत स्टिफ होंगे इस केसेस में। तो टू प्रिवेंट द स्टिफनिंग ऑफ द मसल्स एंड आल्सो द स्टमक क्रैम्प्स, द यूटेराइन क्रैम्प्स जो आते हैं ना, उनको प्रिवेंट करने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रेस्ट एंड अवॉइड स्ट्रेस ड्यूरिंग द साइकिल टू सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ। हाँ, इवेंचुअली जब ब्लीडिंग हो रहा है उस समय आपको रेस्ट करना भी जरूरी है, बिकॉज योर बॉडी इज ऑलरेडी लूजिंग ब्लड, सो योर बॉडी इज ऑलरेडी एनर्जी डिप्राइव्ड, एंड उसमें अगर तुम बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव वर्कलोड करोगे तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको थकान होगी। इससे कुछ बहुत ड्रास्टिक होगा ऐसा नहीं है, बट टू प्रिवेंट एंड टू प्रिजर्व आवर हेल्थ इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज एडवाइज्ड कि आप एक डेजिग्नेटेड टाइम ही काम करो एंड यू टेक प्लेंटी ऑफ रेस्ट।
एंड स्ट्रेस शुड बी लेस, जितना स्ट्रेस कम होगा उतनी साइकिल आसान होगी। अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो हार्मोनल इंबैलेंस होगा, हार्मोनल इंबैलेंस होगा तो साइकिल अब्रप्ट हो जाएगी। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेस भी इसमें कम लिया जाए, ठीक है। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? प्रॉब्लम्स लाइक इरेगुलर पीरियड्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग और पेन कैन साइन ऑफ हेल्थ इश्यूज। सी, अगर फ्रीक्वेंटली हो रही है चीजें, ये कौन सी? इरेगुलर पीरियड्स फ्रीक्वेंटली हो रही है, जैसे मैंने कहा 3 महीने बाद पीरियड्स आना, 4 महीने बाद पीरियड्स आना, और सिर्फ साल में 3 ही बार पीरियड्स आना, 4 साल में 3 ही बार। पीरियड इज अ लेमन टर्म यूज्ड फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो साल में 3 ही बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आना, दीज आर कंसर्निंग फैक्टर्स। तो अगर ये कंसर्निंग है तो यू हैव टू कंसल्ट द गायनेकोलॉजिस्ट, है ना। एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, एक बारी 2 बारी चलता है, बहुत प्रोलॉन्ग्ड एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर हो रहा है, फर्स्ट मेंसेस में भी ऐसे हुआ, सेकंड मेंसेस में ऐसे हुआ, थर्ड मेंसेस में ऐसे हुआ, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, तो देन इट इज कंसर्न, यू हैव टू, दिस माइट बी अ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, है ना। ओवेरियन ट्यूमर, ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन कैंसर, ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर, बेनाइन ट्यूमर्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, कुछ भी हो सकता है। तो दिस शुड बी प्रिवेंटेड, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट द गायनेकोलॉजिस्ट। और पेन कैन साइन ऑफ हेल्थ इश्यूज, सो पेन होता ही है, ठीक है। जो यूट्राइन क्रैम्प्स है वो आएंगे ही आएंगे 100%, बिकॉज योर एंडोमेट्रियम इज गेटिंग फ्लश्ड आउट ऑफ द बॉडी, राइट। बट अगर ये बहुत एक लिमिट को क्रॉस कर देता है, यूजुअल पेन से ज्यादा है, उस समय पे इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड गो एंड कंसल्ट द गायनेकोलॉजिस्ट। Regular medical checkups and consultation with the doctors help in managing these problems and preventing complications such as anemia and hormonal disorder. तो मैंने कहा एनीमिया कब होता है? एक्सेसिव ब्लड लॉस से एनीमिया हो सकता है ना। चेंज इन द शेप ऑफ द आरबीसी से एनीमिया हो सकता है। हार्मोनल डिसऑर्डर्स, अगर तुम्हारी बॉडी में साइकिल रेगुलरली नहीं आ रही है तो हार्मोनल इंबैलेंस होगा। To prevent this anemia and hormonal imbalance disorders, it is important that every 6 months, every 3 months, a woman should go to the gynecologist and she should get herself checked and should consult with the doctor, right? So this is important. Menstrual health के ये कुछ और parts थे। अच्छा, और क्या है? ये थोड़ा सा important है बच्चों। Awareness about the menstrual cycle is important for girls and women. So there is something which is called as IMNCI, है ना। एक प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, IMNCI हो गया, या मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, इसको हम लोग MCH बोलते हैं, MCH, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो इसमें हम लोग कंसर्न किसको करते हैं? प्रेग्नेंट मदर्स को हम लोग, इसमें हमारा जो टारगेट ग्रुप होता है वो प्रेग्नेंट मदर्स होती है, और साथ में गर्ल्स जो प्यूबर्टी में है उनको टारगेट किया जाता है। प्यूबर्टी में यानी जिन्होंने मेंस्ट्रुअल करना शुरू कर दिया है, जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो चुका है, तो उनको हेल्थ एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एवरी गर्ल शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन हर बॉडी एंड व्हाई इट इज हैपनिंग इन हर बॉडी एंड वेदर इट इज कंसर्नफुल और नॉट। तो अनलेस हमको नॉर्मल पता नहीं होगा, अगर हमको नॉर्मल पता होगा तो हम लोग पता कर सकते हैं ना कि गड़बड़ क्या है। If you don't know the normal only, then it is very difficult for you to self-analyze or self-diagnose or see the threat of possible problems which are coming in your body, right? So it is important that every single person, every girl, every woman should be well educated about the process of menstrual cycle. इसका awareness होना चाहिए, and इस दौरान बॉडी में कौन से चेंजेस होंगे इसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। Educating boys and men is also necessary to create understanding and reduce stigma. So why boys में पता होना क्यों जरूरी है? सर हमें तो हो नहीं रहा है, क्यों जरूरी है? See, it is important so that stigma ना रहे, टाबू ना रहे इस चीज को लेकर के। There are very many false beliefs, right? हमारे जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे false beliefs है menstruation को लेकर के, that it is unholy and it is unhygienic। ऐसा नहीं है, ठीक है। It's a natural process which occurs in human body, like we defecate, है ना, जैसे हम लोग डिफिकेट करते हैं वैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। सो एवरी सिंगल बॉय शुड नो अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ आवर लव्ड वंस, है ना, वी कैन टेक केयर ऑफ आवर मदर, आवर फैमिली मेंबर्स हु आर गोइंग थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल, and we should equally understand that what they go through during this phase, right? So it is important for boys also to get educated about all these sort of female problems or the menstrual problems, and also to reduce the stigma, जो उसको लेकर के टैबू है उसको कम करने के लिए भी it is important to educate the boys as well. अच्छा, हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दैट वी नो वेरी वेल कि एक हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इंश्योर्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सपोर्ट्स फर्टिलिटी, हेल्प्स वुमेन लीड टू एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। इंश्योर्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हमारे ओवरीज का प्रॉपर फंक्शनिंग बताने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? अगर तुम्हारे मेंसेस रेगुलर है, इफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलर, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज 100% पॉसिबिलिटी कि तुम्हारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा है ना। दूसरा क्या? सपोर्ट फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब क्या है? द टेंडेंसी टू गेट प्रेग्नेंट, नो, मतलब हमारे ओवम फर्टिलाइज है या वो इतने कैपेबल है क्या फर्टिलाइज होने के लिए, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्दी होगी तो फिजियोलॉजिकल और जो क्या कहते हैं उसको साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो जो वुमन रहेगी उसकी मेंटेन रहेगी। तो अगर फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ मेंटेन है, इसका मतलब शी विल हैव हेल्दी एंड हैप्पी लाइफस्टाइल, राइट, हैप्पी लाइफ। Understanding and caring for the menstrual cycle is essential for individual and society as a whole. तो एक
वुमन का ख्याल रखना है ना ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर herself, her health, and for the society as well, because the woman from the family is the core member of the family. ठीक है, woman will take care of every other person who is there in the family. So if she is not well, she would not be able to take care of her. So it's our responsibility to take care of the woman of the family at the time when she is menstruating or she is having any sort of troubles, right? So this is a collaborative work, है ना. A male and a female collaboratively runs the society. None of them are privileged, or none of them have the higher what you can say, higher strata or higher aura. Both of them works collaboratively, and then only the society works. So it is very important to maintain or to take care of the woman, to keep the society healthy and happy, right? Okay, so let's summarize the last topic. हमने क्या क्या पढ़ा आज के सेशन में? We have learned about first, so what is menstrual cycle? Then we learnt about the menstrual phase, right? Then we learnt about the ovulation phase, है ना. उसके बाद में हम लोगों ने luteal phase को पढ़ा, तो menstrual phase पढ़ा, ovulation phase पढ़ा, luteal phase पढ़ा, follicular phase पढ़ा, right? Menstrual, follicular, ovulation and luteal. These were 4 phases. We learnt about their duration, what are the physiological changes which are occurring in the human body, in the female body, that we have learned. We learned the importance, and we learned how to maintain, है ना, how to maintain the health during menstrual cycle, what all things should be taken care of during this process or the phase of menstrual cycle. Let's move towards the question now. The menstrual cycle is natural process that prepares the female body for kiske liye? Growth of the bones? Not at all. Pregnancy? Yes. Digestion? No. Blood circulation? No. So the option will be option B. It prepares the female body for pregnancy. Okay, next. If fertilization does not occur, which of the following happens? Ovulation continues, uterus sheds its lining, progesterone increases continuously, the egg divides. Now if fertilization does not occur, मतलब क्या ये कब की बात हो रही है? This question is from which phase बच्चों? This is from ovulation phase, है ना. Ovulation हो गया है, और luteal phase भी बोल सकते हो तुम इसको. Luteal phase और ovulation phase से है. अगर नहीं हुआ fertilization, यानी ovum तो got released, but this ovum did not got fused with the sperm, है ना, तो उस केस में क्या होगा? ओव्यूलेशन होते रहेगा क्या? विल दी ओव्यूलेशन विल कंटिन्यू? नो, ओव्यूलेशन नहीं होगा. यूटेरस शेड दैट लाइनिंग, हाँ, यूटेरस अपनी लाइनिंग को शेड करना शुरू करेगा अगर नहीं हो रहा है तो. प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली? नहीं, प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होते रहेगा तो क्या होगा? थिकनिंग और बढ़ते रहेगी. हमको ये नहीं चाहिए, तो इसका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा. तो हार्मोन विल स्टार्ट डिप्लीटिंग and the egg divides. No, egg will divide when they'll get fused, है ना, जब fertilized. तो ऑप्शन बी will be the right answer. Option B will be the right answer. Okay, let's move toward the next question. Question number 3. Which hormone mainly controls the menstrual cycle? Insulin and glucagon? नहीं, ये तो सर शुगर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है. Estrogen, progesterone? Yes. Adrenaline, thyroxine? नहीं. Adrenaline और thyroxine का अलग काम है. T3, T4 साइकिल को मेंटेन करना, और adrenaline जो होता है हमारा वो FFF के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. पता है क्या adrenaline का यूजेस है ना? FFF के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये, है ना. फ्लाइट, फ्राइट एंड फाइट, ये 3 रिस्पॉन्सेस के दौरान एड्रेनालिन सीक्रेट होता है हमारी बॉडी में, जिसको हम लोग एड्रेनालिन रश भी बोलते हैं. ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन? नो, ये तो पोस्ट मेंस्ट्रुअल मतलब पोस्ट प्रेगनेंसी काम में आता है ये ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन, तो अभी उसकी जरूरत नहीं है. तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 4. द एवरेज लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अबाउट? कितना होता है एवरेज लेंथ सर होता है? अब ये को यहाँ पे 2 आंसर हो सकते हैं. जनरली जो लेंथ होती है एवरेज वो होती है 21 से लेकर के 32 डेज की, है ना. पर मोर एक्यूरेट कौन सा होगा इसमें? 28 डेज होगा सर. तो उसने हमसे एवरेज पूछा हुआ है, तो एवरेज तुम पूछोगे, एवरेज अगर पूछा है तो तुम लिखोगे 28 डेज, और अगर तुमसे पूछा है कि टोटल कितनी होती है तो तुमको लिखना पड़ेगा 21 टू लेकर के 32 डेज के बीच में होती है. समटाइम्स इट ऑल्सो क्रॉसेस 40. ओके, 40 डेज भी क्रॉस कर सकती है. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा? 28 डेज, ऑप्शन डी. 7, 14, 21 नहीं होगा. ओके, द रेंज ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, अभी रेंज पूछा हुआ है, अब उसने रेंज पूछा, अब एवरेज नहीं पूछा हुआ है, तो रेंज में हम लोग क्या लिखेंगे? सीधा 21 to 35. ये सारे ऑप्शंस गलत होंगे. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. Okay, so what have we learned? We learned about menstrual cycle. We learned about the phases of menstrual cycle, starting from the menstrual phase. Then we learned about the what you can say follicular phase. We learned about ovulation phase. We learned about luteal phase. We learned about the importance of menstrual cycle. We learned how to maintain health during menstrual phase, and we also have we finished with 5 good questions from this topic. So that's it for today, guys. Thank you very much. Stay connected with Preparation Easy.